आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सीरिया से जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि आज मुल्क की दिफाई सनतें पहले ही दिफाई अफवाज की जरूरत को पूरा करने के लिए साथ साथ बरामदात के लिए मुख्तलिफ किस्म के मिलिट्री हार्डवेयर तैयार कर रही हैं। इसकी वजह से घरेलू जरूरियात के हिस्से में इजाफा हुआ है, जो साल 2018 में ऊपर के रुझान पर है। उनका मानना है कि दिफाई मैन्युफैक्चरिंग एक नया सूरज निकलने वाला शोबा है, जो मुस्तकबिल में बड़ी तरक्की का मुशाहदा करेगा। The government has adopted a whole-of-nation approach and has undertaken several policy initiatives brought in reforms to encourage indigenous design, development and manufacture of defense equipment. Some of these initiatives are simplification of industrial licensing system, which are with a longer validity period, increase in foreign direct investment FDI limit to about 74%, notification of 4 positive indigenization list, almost with about 411 items, earmarking funds for research and development and providing financial support to MSMEs and encouraging participation by the local industry, earmarking 75% of our capital procurement budget through domestic industry, and last year we did achieve it in the financial year which is just gone by, and encouraging the private industry in defense manufacturing and providing them with a level kind of a playing field. The government has also established dedicated defense industrial corridors in Tamil Nadu and Uttar Pradesh. Investment worth 2,200 crores have already been made in Uttar Pradesh and about 3,800 in the Tamil Nadu defense. वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने इंडिया डोमिनिकन रिपब्लिक बिजनेस समिट में बात करते हुए कहा है कि लातीनी अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात में शऊरी तौर पर शिद्दत आ रही है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत से तरीकों से कारोबार आगे बढ़ रहा है और डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ हमारी तिजारत तकरीबन $1 बिलियन तक पहुंच गई है। There's a conscious intensification of our relationship with Latin America. And I would say that in many ways business is leading the way. So this is very much therefore a diplomatic trip. It is a political trip, but it is of course a business trip. Where the Dominican Republic is concerned, from a trade which we had of $12 million before we established diplomatic relations 20 years ago, it has today reached almost $1 billion, and a lot of our trade is in pharmaceuticals, in marine products, in 2- and 3-wheelers, in iron and steel, in gold, and in paper and paper products. I also note that quite a few Indian companies have already established offices here. I see among them is Glenmark Pharmaceuticals, Hetero, Kaplan Point, and Flagship Biotech. And a lot of our big automobile dealers, 2-wheeler dealers like Bajaj, Hero, and Royal Enfield have actually local dealers. I also am told that we have started sourcing small cars from India,
including those which are made by multinational companies in India. In fact, as we entered, I was speaking to the head of our business delegation, and he told me that he himself, his company has had 15 years of business here, and they have a number of important distributors. बढ़ते आगे बात जरा जम्मू कश्मीर के मौसम की भी करते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वादी कश्मीर और जम्मू खत्े के अलग थलग मकामात पर वसी पैमाने पर बारिशें हुई, जबकि गुलमर्ग समेत बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान कश्मीर डिवीजन में हल्की बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज से 2 मई तक मौसम जुज़वी तौर पर अबलारूद रहेगा और कहीं पर वक्फे वक्फे से बारिश या गरज चमक के साथ दोपहर और शाम तक 50% इम्कान के साथ बारिश हो सकती है और कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिशों के साथ साथ हल्के से दरमियाना दर्जे की बारिश का भी इम्कान है। इसमें कहा गया है कि 4 मई तक मजमूई तौर पर मौसम बेतरतीब रहने का इम्कान है। वादी कश्मीर में हुई बारिशों की वजह से गली कूचों के साथ साथ कई मकामात पर राबिता सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं, जबकि कई इलाकों में बारिशों का पानी रिहायशी मकानों के अंदर दाखिल हुआ है। मूसलाधार बारिशों की वजह से फसलों, सब्जियों और दीगर मेवा बागात को भी नुकसान पहुंचा है। अगरचे वादी कश्मीर में इस वक्त बारिश रुकी हुई है, ताहम मौसम जो है वो आलूद ही है। मौसम किस तरह का है वादी कश्मीर में, खासकर हम श्रीनगर की अगर हम बात करेंगे, कई मकामात पर जो खबरें मौसूल हुई हैं कि कई इलाकों से नदी नालों में पानी की सतह जो वो बढ़ गई है। श्रीनगर में किस तरह का मौसम है, सीधा चलते हमारे साथ फैसल रियाज है और उसके साथ साथ ही बांडीपुरा भी चलते हैं जहां हमारे साथ है जहूर अहमद। उनसे भी तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे कि बांडीपुरा और गुरेज इलाके में किस तरह का मौसम है, लेकिन सबसे पहले चलते हैं फैसल के पास। फैसल, जरा अपडेट कीजिएगा कि मौसम किस तरह का है। अगरचे अगले महीने की 4 तारीख तक मौसम झूका तो रहने की पेशगोई की है, बारिशें हो रही है। कई इलाके ऐसे हैं श्रीनगर के अंदर जहां पर जो है गली कूचे ज़ेर-ए-आब आ गई हैं, मकानों के अंदर पानी जमा हुआ है और लोगों की शिकायतें हैं कि पानी की निकासी के लिए कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए हैं। किस तरह के हालात हैं और किस तरह का मौसम है? देखिए, बिल्कुल गवर, कुछ दिनों से लगातार महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक बारिशें हो रही है। उसके बाद जो यहाँ के नदी नाले हैं उनमें भी काफी ज्यादा पानी जो है जमा हुआ था, पानी की सतह में भी इंक्रीज हुआ था। तो वही अगर हम लेन्स बाय लेन्स या कोचों की बात करें तो उनमें भी बारिशों की वजह से पानी जमा हुआ था, जिसके बाद आम लोगों को चलने फिरने में दुश्वारियां आ रही थी। हालांकि जो हमारे नदी नाले खासकर जहलम रिवर की बात करते हैं उसमें भी पानी का बहाव ज्यादा था, लेकिन ग्रेजुअली कल शाम से उसमें थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आई, वो नीचे की तरफ चला गया। लेकिन वही जब हम बटमालू, महजूर नगर, हमजा कॉलोनी, पारिमपुरा या बाकी दीगर इलाका जो है श्रीनगर के उनकी बात करें तो उनमें बारिशों की वजह से जो है पानी जमा हुआ था, जिसके बाद आम लोगों को चलने फिरने में दुश्वारियां होती थी। उनको बड़े बड़े जूते पहन के फिर चलना पड़ा था, क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम था वो पूरी तरीके से उस वाटर को जो है रिसीव नहीं कर पाता था। जो रेन वाटर है उसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता था, उसको आउटलेट नहीं होता था। तो हालांकि जो डिवाटरिंग स्टेशन है वो बने हुए हैं पूरे शहर में, लेकिन उसके डिवाटरिंग स्टेशन फंक्शनल होने के बावजूद में जो पानी है वो जमा होता है और ड्रेनेज सिस्टम भी कहीं ना कहीं डिफंक्ट और फेल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आम लोगों से हमने कल भी हमने बात की थी आम लोगों से, और कल भी हमने ये हुकाम तक पहुंचाया था किस तरीके से मुश्किलातें हो रही है श्रीनगर के लोगों को। जिस श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश की जा रही है, जहां पे बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं कि हम ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं या बाकी चीज आप पानी का निकासी के लिए हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो फैसिलिटी पूरी तरीके से एक्सपोज हो रही है। क्योंकि जो मयारी ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए था वो अभी भी शहर श्रीनगर में लेके, हालांकि अभी आपको पता है कि महकमे मौसमियात की तरफ से लगातार 4 मई तक ऐसी पेशन गोई की गई जहां कभी वक्त के बाद बारिशें भी हो सकती है, थोड़ी बहुत धूप भी खिलेगी, लेकिन जो अमूमी तौर पर वेदर होगा वो अबर आलूदा ही होगा, मतलब अबर आलूदा होगा और बारिशें भी हो सकती है। और अगर इसी नवीयत से बारिशें हो 4 तारीख तक रही तो आने वाले दिनों में काफी ज्यादा मुश्किलातें जो है मजीद आम लोगों को होने वाली है। क्योंकि जो इस वक्त अभी थोड़ी बहुत बारिशें हो रही है तो उसके बाद ही पानी लेन्स में जमा हो जाता है, गलियों में जमा हो जाता है। अभी अगर आप देखिएगा 4 तारीख तक मौसम ऐसे ही रहा, हर रोज थोड़ी थोड़ी बारिशें हुई तो फैसल जहां बात करेंगे, जहां आपने भी जिक्र किया है, कल भी हमने देखा है कि महजूर नगर की बात करेंगे, परिमपुरा की बात करेंगे, भिमरा की बात करेंगे, खुमैनी चौक की बात करेंगे। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जो पानी है वो घरों के अंदर दाखिल हुआ है और लोगों की शिकायतें हैं कि पानी की निकासी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है, जहां पर वो कहीं ना कहीं जो मुतलका हुकाम है, चाहे म्युनिसिपैलिटी की बात करेंगे, उनसे कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी पाई जा रही है। तो क्या इस हवाले से आज इकदाम उठाए जा रहे हैं पानी की निकासी के लिए? देखिए, अब पानी की निकासी के लिए सबसे बड़ा जो चीज
जब ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं तो निकासी कैसे होगी। अब अथॉरिटीज यानी एसएमसी को बड़े बड़े मोटर लाने इन इलाकों में इंस्टॉल करने हैं और उनको पानी निकालना है, लेकिन मोटर लाने से या पानी निकालने से ये एक ही बार ये मसला हल नहीं होगा, एक ही बार ये मसला क्लियर नहीं होगा। उनको चाहिए कि एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनना चाहिए। जहां तक आपने महजूर नगर इलाके की बात की तो आपको याद होगा 2014 के सैलाब के बाद ये कुछ इलाके थे जिनको जरा इफेक्ट हुआ था, और उसके बाद जो डिवाटरिंग स्टेशन से हमारे जो ड्रेनेज में पानी आउटलेट करते हैं उन ड्रेनेज जो है वो डिवाटरिंग स्टेशन जो है वो तबाह हो गए थे। उसके बाद वर्ल्ड बैंक की फंड की वजह से उनको रिनोवेट किया गया, लेकिन आपको मैं बता दूं आज 2014 के बाद सैलाब के बाद करीबन 7-8 साल हो गए, अभी तक वो डिवाटरिंग स्टेशन जो है वो कंप्लीट है वो डिफंक्ट हुए, क्योंकि उनमें जो जरूरी सामान लगाना था वो कहीं ना कहीं डिफंक्ट था, ठेकेदार ने काम रोका। तो यही वजह है कि जो ये मेन एरिया थे, राजबाग की बात करें या महजूर नगर इलाकों की बात करें, वहां पे जो डिवाटरिंग स्टेशन बने थे ताकि जो ड्रेनेज का वाटर है वो बाहर जाए, वो इन फ्लड चैनल में चला जाए, वो डिवाटरिंग स्टेशन कहीं ना कहीं डिफंक्ट है, उन्हीं की वजह से जो है पानी जमा होता है और ड्रेनेज। फैसल, आप हमारे साथ बने रहे, जरा बांडीपुरा भी चलते हैं जहां हमारे साथ हैं ज़हूर, और इसके साथ साथ ही बारामूला से इरशाद भी हमारे साथ हैं, उनसे भी तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। ज़हूर, जरा अपडेट कीजिएगा किस तरह का मौसम है, क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त, क्योंकि गुरेज बांडीपुरा रोड की बात करेंगे तो क्या कुछ उसमें अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल गवर, बात करेंगे अगर आप बात करेंगे मौसम के हवाले से तो आपको पता ही कहीं रोज से जो है मौसम खराब है और बारिश का सिलसिला जो है बीच बीच में जारी है, लेकिन आज भी उबरौलूदा बांडीपुरा में देखने को मिल रहा है। तो मौसम की बात की जो गुरेज बांडीपुरा रोड है उसको एक तरफा छोड़ दिया गया है, वो अभी उसका जो रोड है आज बांडीपुर से लेकर गुरेज तक जो ट्रैफिक है, लेकिन उनको इनकी जो चेन्स होती हैं उनको लगाने की जो है वहां पे अपील की गई है। और उसके साथ साथ अगर हम यहाँ जो वाटर लॉगिंग हुई है, चाहे म्युनिसिपल लिमिट की बात करेंगे या अर्बन एरियाज की बात करेंगे, हमारे यहाँ जो कई इलाके हैं जो जेर आब आ गए हैं, चाहे हाजन की बात करेंगे, सोनावारी का इलाका है या बांडीपुर के इलाके के कुछ जेर आब आ गए हैं जो वलोर के आसपास रह रहे हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलिए ज़हूर बांडीपुरा, आपका बहुत आप हमारे साथ ज़रूर बने रहे, लेकिन शुमाली कश्मीर बारामूला से इरशाद भी हमारे साथ है। इरशाद, जरा अपडेट कीजिएगा बारामूला में किस तरह की सूरत हाल है, और जो उड़ी इलाके से खबरें मौसूल हो रही है कि लैंडस्लाइडिंग की और साथ ही साथ कई राबिता सड़कें वहां पर फिलहाल आमद रफ्त के लिए बंद है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल अगर हम पहले सरहदी इलाके की बात करें जहाँ पे मुसलसल बारिशों की वजह से जो लैंडस्लाइडिंग की हालत इस वक्त वहां पे की बात करें, इसके साथ साथ और या जरूरा इलाके की बात करें जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक इलाके हैं, वहाँ पे लगाने के जो मुश्किलात हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो PMGSY के अंडर में जो सड़क आते हैं वो काफी उसमें डैमेज हो चुका है, जो बंड के साथ साथ ब्रिज जो है वो नीचे आ गए, और देखा जाए वहाँ पे फसल के साथ साथ दरख्तों को भी काफी नुकसान पहुंचा। और अभी तक जो है वहाँ पे जिला इंतजामिया के साथ साथ चाहे हम PMGSY डिपार्टमेंट की बात करें या PDD या दीगर जो महकमे है वो अभी तक नहीं गए। बिल्कुल आपको बताते चले सुबह से तकरीबन 2-3 फोन कॉल समय आए, चाहे हम वहाँ पे जो सरपंच पंच है उनका ये कहना है कि इन सरहदी इलाकों को जो है हर हमेशा नजरअंदाज किया गया, और देखा जाए हमने इससे पहले भी जो है इंतजामिया के नोट में लाया, चाहे हम यहाँ पे बीकन अथॉरिटी के हवाले से बात करें या PMGSY के हवाले से बात करें, PDD या दीगर जो महकमे, मगर अभी तक जो है कोई दिलचस्पी नहीं दी गई। बिल्कुल इस वक्त जो है मौसम ठीक बना हुआ है, और जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है ये किरालार का मुकाम है, और यहाँ पे भी बारिशों का जो पूरा पानी है वो सड़क पे आया है, इस नेशनल हाईवे पे आया है, और लोगों को चलने फिरने में काफी सारे दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे एक तरफ से इंतजामिया जो है वो काम लगा रहा है, हालांकि 1-2 दिन के बाद जो है उस काम को रोका जाता है, वो काम जो है इनकम्प्लीट रह जाते हैं, उसकी वजह से ये अच्छी तरह से जो यहाँ पे सिस्टम पे काम नहीं चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद बारामूला से, ज़हूर बांडीपुरा से और फैसल रियाज श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे मौसम के हवाले से, जहां 4 मई तक महकमे मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि 4 मई तक मौसम जू का तो रहने का इम्कान है, और साथ साथ वादी के मैदानी इलाकों में बारिशें होंगी, उसके साथ ही बाला इलाकों में बर्फबारी, हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। महकमे मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई है। वही जो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वादी कश्मीर के साथ साथ सूबा जम्मू के अंदर भी बारिशें हुई हैं, उसकी वजह से वादी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहां पर गली कोचों के साथ साथ जो राबता सड़कें हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। कई इलाके ऐसे हैं, महजूर नगर, राजबाग के कई ऐसे मकामात पर जहां पर पानी, बारिशों का पानी
मकानों के अंदर दाखिल हुआ, जिसकी वजह से लोगों ने कहीं ना कहीं इंतजामिया पर नाराजगी का इजहार किया है। बढ़ते आगे बात जरा बडगाम की करते हैं। म्युनिसिपल काउंसिल बडगाम के जिम्मेदारों ने शिकायत की है कि म्युनिसिपल काउंसिल के हदूद में गैर कानूनी तामीराती काम हो रहे हैं और अगरचे सरकारी काम भी किए जा रहे हैं जिन्हें म्युनिसिपल काउंसिल से एनओसीज की जरूरत होती है, ताहम उन्हें भी नजरअंदाज करके गैर कानूनी काम किया जा रहा है। उन्होंने अब एलजी इंतजामिया से मुदाखलत की साथ इस हवाले से कहा है कि जो काम हो रहे हैं अगरचे म्युनिसिपल काउंसिल का उनकी जानिब से उन्हें एनओसी की जरूरत पड़ती है, लेकिन उन्हें भी साइडलाइन करके उन्हें भी नजरअंदाज करके ये काम किए जा रहे हैं। चाहे हम निजी काम की बात करें, तामीराती काम या कोई सरकारी काम हो, इस सिलसिले में जो म्युनिसिपल काउंसिल बडगाम है उन्हें नजरअंदाज करके गैर कानूनी तौर पर काम किए जा रहे हैं। उन्होंने अब एलजी इंतजामिया से इस मामले में फौरी मुदाखलत की अपील की है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि म्युनिसिपल काउंसिल बडगाम के जिम्मेदारों की जानिब से शिकायतें की गई हैं कि म्युनिसिपल काउंसिल के हुदूद में गैर कानूनी तामीराती काम किए जा रहे हैं, चाहे निजी तामीराती काम हो रहे हैं या सरकारी तौर पर काम हो रहे हैं, लेकिन म्युनिसिपल काउंसिल बडगाम की जानिब से जो एनओसीज की जरूरत पड़ती है ताहम उन्हें नजरअंदाज किया जाता है, उन्हें साइडलाइन करके गैर कानूनी काम को जारी रखा जा रहा है। उन्होंने अब एलजी इंतजामिया से इस सिलसिले में मुदाखलत की अपील की है। तफसीलात के लिए सीधा बडगाम चलते हैं जहां हमारे साथ है मोहम्मद अशरफ। अशरफ, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं, क्या कुछ खबर है? देखिए गवर, जहां तक हम आज की इस कार्रवाई की बात करते हैं तो बडगाम म्युनिसिपल काउंसिल जो है इसके अंदर कई ऐसी बिल्डिंगें तामीर की गई है जिनमें जो एनओसीज होती है या परमिशन जो है म्युनिसिपल काउंसिल बडगाम देता है, तो इनको साइड में रख के जो है बिल्डिंगें तामीर की जाती है। वहीं पर इसमें दो इशू है। एक तो ये कि गवर्नमेंट भी जब कोई बिल्डिंग बनाता है तो उसके लिए भी जो म्युनिसिपल हदूद के अंदर जो ऑफिस आते हैं, जब वो कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उनके लिए भी यहाँ से ही परमिशन जाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हुआ है आज तक। कई ऐसी बिल्डिंगें बनाई गई है, तामीर भी की गई और जिनकी वायलेशन हो चुकी है और जो काउंसिल है यहाँ का उसको अभी तक ये भी नहीं पता, क्योंकि जो वार्ड मेंबर्स हम कह सकते हैं जो वार्ड के एमएलएज होते हैं उनको पता होना चाहिए कि उसके वार्ड में कोई बिल्डिंग तामीर की जाती है और उसको साइड में रख के जो है इस तरह की बिल्डिंगों को परमिशन दिया गया है, वो लीगली है या इलीगली है, इस पर हम बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ काउंसिल के जो चेयरमैन है बडगाम के मुश्ताक अहमद, उनसे बात करेंगे। मगर पहले अगर हम बडगाम की बात करें, ये जो काउंसिल है बडगाम का काउंसिल, अगर इतनी जो कमेटीज है, कमेटियों का जो हेड होता है वो काउंसिल होता है। बडगाम काउंसिल इसमें कई ऐसी बिल्डिंगें बने, चाहे रेलवे ने बिल्डिंग बनाई है तो इनको जो है किनारा ही कश करके ही बिल्डिंगें बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं या तो तालमेल की कमी है या पैसे कमाने का एक जरिया बना दिया गया है जिसकी वजह से आम लोग सफर करें। आज बडगाम में जो है 2 बिल्डिंगों को जो है नोटिस चिपका दी गई है जिसमें यह लिखा गया है कि इसने वायलेशन किया है बिल्डिंग परमिशन की, मगर जब उसके पास नोटिस थमा दी जाती है तो उस नोटिस में यह कहा जा रहा है कि इसके बाद जो आप काम करोगे अगर उस पे जो आप काम करोगे उसके आप खुद जिम्मेदार होगे अगर कल को उसको म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से कोई नुकसानात किया जाएगा। मगर सवाल यह है कि जब काउंसिल बना है, काउंसिल को पता नहीं है परमिशन कब जाते हैं, परमिशन गए हैं नहीं गए हैं, इन सब चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है म्युनिसिपल काउंसिल चेयरमैन मुश्ताक अहमद। भाट साहब, हम देख रहे हैं आपके सामने एक बिल्डिंग तामीर की गई है और बिल्डिंग में आज हमने देखा एक बोर्ड भी चस्पा किया गया है म्युनिसिपल की तरफ से कि इसने वायलेशन की है। तो आपके सामने जब वायलेशन हो रही है तो बाकी की क्या उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, जैसा आपने कहा कि आपके सामने जो बिल्डिंग बन रही है उसको उन्होंने कोई कागज चस्पान किया है, मेरे नॉलेज में तो है नहीं। अगर मेरी नॉलेज में होता तो पहले ही बंद कर दी होती उन्होंने बिल्डिंग। लेकिन जो हमारा फील्ड स्टाफ है वो खुद ही जिम्मेवार है इसका, मेरे ईओ साहब इसके जिम्मेवार होंगे क्योंकि उनको देखना है, वो तो इसी बात का तनख्वाह लेते हैं। अगर उनकी नॉलेज में था कोई भी मसला तो उनको उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर उन्होंने नहीं किए तो मैं सरकार से अपील करता हूँ कि ऐसे ईओ को ना बैठने दिया कुर्सियों पर। तो आपका ये कहने का मतलब है कि जो काउंसिल का फिर काम क्या होता है? काउंसिल का काम है डेवलपमेंट सेक्टर को देखना। हम डेवलपमेंट सेक्टर को देखे, थोड़े हम सिविलियन को तंग करने के लिए यहाँ बैठे हैं। अगर सरकार ने 2016 में एक ऑर्डर निकाला है जितने भी सरकारी बिल्डिंग्स बनेंगी
उनको प्रॉपर परमिशन करना पड़ेगा यहाँ से, म्यूनिसिपलिटियों से, जितने भी हमारे म्यूनिसिपल काउंसिल कमेटीज, कॉर्पोरेशन वगैरह है। इनको चाहिए था कि सरकार पहले अपना इंस्टीट्यूट लेती या अपनी तरफ से पहले परमिशन करवाते, फिर हम लोगों को भी बोलते कि आप भी परमिशन करो। जब सरकार ही अपना ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है तो लोगों पे किस तरीके से थोप रहे हैं ऐसे ऑर्डर्स। तो हम ये समझे यहाँ पर कि जो ऑर्डर्स इश्यू हुए हैं, अब जब उन ऑर्डर्स की वायलेशन हो रही है तो कहीं ना कहीं जो काउंसिल को साइड करके इस तरह के ऑर्डर्स निकाले जा रहे हैं। ये तो आप सरकार से पूछिए, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर से पूछिए। वो खुद भी आई थी एक विजिट करने के लिए यहाँ ओमपुर हाउसिंग कॉलोनी में, वहां पर भी कोई वायलेशन हो रही थी, उन्होंने तो कोई एक्शन नहीं किया उसके खिलाफ। 2-3 मुलाजिम हमारे रखे हुए वहां सस्पेंड करके मैं 2-3 बार उनको मिलने के लिए गया कि यहाँ स्टाफ की बहुत सारी कमी है, वो नहीं देते वहां से। तो मैं तो हैंडफुल रिक्वेस्ट करता हूँ सीएस साहब से, गवर्नर इंतजामिया से, तो वो ये इंस्टीट्यूट ले और सख्त से सख्त कार्रवाई करे। तो जहां तक आपने खुद कहा कि जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनती है या जो सिविल लोग जो है काम करते हैं उनके लिए प्रॉपर एक परमिशन होता है, यहाँ पर पहले एनओसी जमा करनी होती है, फाइनल में जो परमिशन है वो यहीं से जाता है। मेरा ये कहने का मतलब है जो खिलाफ वर्जी टीम होती है, क्या हम ये कह सकते हैं कि मिली भगत हो सकती है? ऐसा कुछ हो सकती है, क्यों नहीं। अगर हमने परमिशन दिया होगा 2000 स्क्वायर फुट का तो वहाँ 2500 बने, कैसे बने? ये तो लगता है मुझे कि ये इन्वॉल्वमेंट एक दूसरे के साथ में मिली हुई भगत है। तो आप रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपके मेंबरान है वो रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग वार्डों से, आपको नहीं लग रहा कि लोग इससे सफर कर पाएंगे और सफर हो जाएंगे? क्योंकि प्रॉपर वे जो होता है, अगर वो आपके पास आएंगे, आपके वार्ड से मिलेंगे, उसके बाद ही उसको परमिशन। अब जब कोई बिल्डिंग बना रहा है, उसने चाहे वायलेशन की या परमिशन हासिल की, अब जब उस पर जो नोटिस चिपकाई जाती है, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये उसके साथ भी नाइंसाफी है? बिल्कुल है, क्यों नहीं। अगर सिविलियन की किसी बिल्डिंग को इन्होंने पहले देखना था कितना परमिशन दिया है हमने, अगर तमाम एनओसीज है उसके पास, अगर जितने भी लाइनिंग डिपार्टमेंट्स है उन्होंने एनओसीज दी है, उसी के हिसाब से तो उसको चलना है। अगर मास्टर प्लान की वायलेशन कहीं पे हो रही है तो उसको भी देखना चाहिए ना। ये तो हमारे ईओ साहब का काम है, हमारी खिलाफवर्जी टीम का काम है। अब जब कि वो नहीं देख रहे हैं तो इसमें हमारा थोड़ी कसूर है। हम पब्लिक नुमाइंदे हैं, पब्लिक के काम करने हैं, हमने थोड़ी देखना है कि बिल्डिंग वायलेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो एक और बात, जैसे आपने खुद कहा कि गवर्नमेंट बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए भी प्रॉपर परमिशन होना चाहिए। जब वो लोग परमिशन के लिए अप्लाई नहीं करते तो आम लोग, क्योंकि अगर हम देखें गवर्नमेंट बिल्डिंग करोड़ में बनती है तो उसके लिए जो परमिशन का जो उसको पैसा देना पड़ता है, तो जब वही आम एक गरीब आदमी मकान बना रहा है उसको प्रॉपरली आप लोग परमिशन के लिए तंग करते, तो जाहिर सी बात है ये तो नाइंसाफी है। देखिए, मैंने 2-3 बार जब भी हमारे काउंसिल की मीटिंग होती है उसमें मेरे काउंसिलरों ने ये सवाल उठाए थे, हमने सरकार को ये लिखा भी है और कोई कैलकुलेशन भी की है, चाहे शायद 5.5 करोड़ के लगभग उनको फीस बनता है जो सरकारी बिल्डिंग यहाँ बन रही है इस समय। पीएस बड़गाम की एक बिल्डिंग बन रही है, शीप एनिमल हस्बेंड्री में एक बिल्डिंग बन रही है, सिडको में बहुत सारा स्ट्रक्चर बन रहा है, रेलवे में बहुत सारा स्ट्रक्चर बना है, जॉली एंड माइनिंग में बन रहा है। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ये काम हो रहे हैं विदाउट माई नॉलेज हो रहे हैं। चलिए अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके साथ जो साथी म्युनिसिपल काउंसिल के, जिनका मानना है कि वहां पर अगरचे निजी काम भी, तामीराती काम हो रहे हैं या सरकार के कुछ काम हो रहे हैं तामीराती काम, लेकिन म्युनिसिपल काउंसिल बडगाम को नजरअंदाज किया जा रहा है और जो परमिशन की जरूरत होती है, एनओसीज की जरूरत होती है, वो नहीं ली जा रही है, जिसकी वजह से अब गैर कानूनी तौर पर भी काम हो रहे हैं। उन्होंने एलजी इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। बढ़ते आगे, यूनाइटेड पीस अलायंस की जानिब से जम्मू शहर के मक्का मस्जिद स्क्वायर में वाक़ा एक निजी होटल में ईद मिलन की एक पुरकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुसलमानों के अलावा दलित, सिख और ईसाई अक़लियतों से ताल्लुक रखने वाले कई दानिशवरों और सियासी और समाजी कारकुनों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मारूफ सियासी और समाजी कारकुनों यूनाइटेड पीस अलायंस के चेयरमैन मीर शाहिद सलीम ने कहा है कि इस तकरीब का मकसद समाज के मुख्तलिफ तबकाजात में प्यार, मोहब्बत और अमन आशती और आपसी भाईचारे को फरोग देना है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब पूरे भारत में अक़लियतों, बिलखुसूस मुसलमानों को नफरत और इंतकामगिरी का शिकार बनाया जा रहा है, जिसका मुकाबला करने के लिए भारत के दलितों, सिखों और मुसलमानों को एक साथ आना पड़ेगा। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुची को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।